Hey dear students, good morning. I hope you all were good and happy at your home and be safe. So now the today's paragraph, the next paragraph is about the Tagore's abundance of the peace. In the previous video, we have understand about what was the thinking of the Mahatma Gandhi and the Rabindranath Tagore about the British education and how both wanted experienced and the practical knowledge besides of the booklet knowledge. I have explained also that how the Rabindranath Tagore explained a natural environment for his schooling, and that's why he always supported a creative and the harmony in the schooling days. So now come the next paragraph is also about the thinking of the Rabindranath Tagore. Then what was the thinking of his about the schooling knowledge and how they support to the natural environment to give the creativity, to give the harmony to the children's mind and the soul. Okay, now come, we will clear the paragraph is Tagore was one of the view. Today's topic is today's paragraph is Tagore was one of the view that creative learning could be encouraged. इस पैराग्राफ को हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं और इसके आगे वाले जो पीछे वाले जो पैराग्राफ है उसमें हम लोगों ने देखा था जो कुछ भी उसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बता दिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है. कैमरे को स्विच करते हैं. देखिए, Tagore was one of the view that the creative learning could be encouraged only within a natural environment. So he chose to set up a school 100 kilometers away from the Calcutta in the rural setting. He saw it as an abundance of the peace. It means a Santi Niketan. We are living in harmony with the nature. Children could create their natural creativity. जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले पैराग्राफ में कि किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जब स्कूलिंग करने जाते थे उस बंद कमरे में तो उनको हेजिटेशन, सफोकेटिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको फील होता था जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी, उनकी हारमोनी जो होती थी वो खुल करके उस स्कूल में नहीं आती थी. बचपन से ही उनका एक सपना था कि मैं जो कुछ भी एजुकेशन लूँ वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में लूँ जो ओपन इन्वायरमेंट हो. इट मीन्स जो नेचुरल हो, जहाँ पे पेड़ पौधे, ठंडी ठंडी हवाएं चले, चिड़िए और जो बर्ड्स हैं, जो तितलियां हैं वो उड़े, उनकी आवाज़ कानों में जाए और हमारे मन को, हमारी आत्मा को शांति मिले, जिसकी वजह से हम लोग एक नए चीज़ों की खोज में अपने मन और माइंड को, अपने सोल और अपने माइंड को हम लोग क्या करें, इन्वॉल्व कर सकें. हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर इसीलिए उन्होंने कलकत्ता, जो कि एक बिल्कुल उस समय सिटीज़ था, उस समय एक अर्बन एरिया के तहत आता था, तो वहाँ से 100 किलोमीटर फॉर अवे, 100 किलोमीटर उन्होंने रूरल सेटिंग में, रूरल एरियाज़ में एक स्कूल की स्थापना की जो कि बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में क्रिएट किया गया था, जिसका नाम था शांति निकेतन. इस शांति निकेतन में बच्चे खुल करके नेचर के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते थे, अपने अंदर के छुपे हुए थिंकिंग को, अपने अंदर के छुपे हुए शिल्प को, आर्ट को, डिज़ायर्स को वो उस इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते थे और उससे अपने जीवन में नई नई आने वाले तकलीफ़ों, नई नई आने वाले सफ़र्स या फिर प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने के लिए उनके माइंड में, उनके सोल में एक नया ही ऊर्जा, एक नया ही ज्ञान उनको उस इन्वायरमेंट से मिलता था. In many senses, Tagore and the Mahatma Gandhi thought about the education in the similar ways. अगर हम कहें, if we will clear that the thinking about the natural environment or the thinking about the basic knowledge, both the Rabindranath Tagore and the Mahatma Gandhi, both thinking was similar. दोनों की थिंकिंग कैसी थी, सिमिलर्स थी. दे both also wanted the practical and the experienced knowledge rather than the booklet knowledge. वो एक एक्सपीरियंस्ड और एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते थे, न कि एक रटंत ज्ञान हो जो बुकलेट वाली शिक्षा होती है. इट मीन्स दे वांट अ एजुकेशन, नॉट अ लिटरेसी. वो साक्षरता नहीं चाहते थे, वो शिक्षा चाहते थे.
Gandhiji was highly critical of the Western civilization and its worship of the machines and the technology. Tagore wanted to combine elements of the modern Western civilization with what he saw as the best within the Indian tradition. महात्मा गांधी चाहते थे कि जो एक मशीनरी शिक्षा है, जो एक मशीन के जरिए बंध जाएं, टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर भारतवर्ष में न आए, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे ये सब कुछ आए भारत में, मशीनरीज भी आए, टेक्नोलॉजी भी भारत में आए, बट विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। वो सब चीज़ें आएँ, सब बच्चे सीखें हमारे यहाँ के स्कूलिंग में, वो सारी एक्टिविटी हो, बट एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे सब कुछ नेचुरल हो। ये नहीं कि फिक्स्ड क्लास हो, फिक्स्ड ड्यूरेशन हो, फिक्स्ड टीचर हो, सिलेबस फिक्स हो, उससे अलग हमको कुछ नहीं पढ़ना है, उससे आगे हमको नहीं जाना है, हमारी थिंकिंग यहीं तक सीमित हो जाए, ऐसा नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि सब कुछ हम सीखें, बट लर्न बाय डूइंग। कैसे सीखें हम? उसको करके सीखें, बुकलेट नॉलेज के जरिए ना सीखें, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे। एंड द फर्दर लाइन ही एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच साइंस एंड द टेक्नोलॉजी एट द शांति निकेतन। वो भी चाहते थे कि शांति निकेतन में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, ये सारी शिक्षाएँ हों, कहाँ पे? उस शांति निकेतन में। किसके साथ साथ? बस इसके साथ साथ आर्ट भी हो, म्यूजिक भी हो, डांस भी हो। ऐसा कौन चाहते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हम मॉडर्न भी बने, हम एजुकेटेड भी हो, बट विद द हेल्प ऑफ देयर ओन स्किल। बस उसके साथ साथ हमारा अपना भी स्किल क्या होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को आर्ट, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आर्ट में, तो उसमें भी उसको आगे बढ़ने की शिक्षा मिले, स्कोप मिले, म्यूजिक में स्कोप हो, डांस में स्कोप हो, उसके अंदर छुपी हुई जो भी आर्ट है, जो भी कलाकृतियाँ हैं किसी बच्चे के अंदर, वो उभर करके आएँ और उसके जरिए वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे। Many individual and thinker were thus thinking about the way a national educational system। बहुत व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो बहुत ऐसे थिंकर हैं, बहुत ऐसे विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, या फिर जो नेशनल मूवमेंट करने वाले जो थिंकर्स थे, उनकी जो एजुकेशनल सिस्टम थी कुड बी फैशंस, वो फैशन पे आधारित थी। मतलब बहुत ऐसे थिंकर्स थे हमारे समाज में उस समय इंडिया में जो एक आधुनिकता की तरफ भागना चाहते थे। सम वांटेड चेंज विद इन द सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश, बट लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन, एक एक्टिविटी, इन सभी चीज़ों को वो चेंज भी करना चाहते थे, सिस्टम्स को बदलना भी चाहते थे। एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड द वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। और उनको ये लगता था कि अगर ये ब्रिटिश एजुकेशन जो है एक लंबे समय तक हमारे समाज में रही तो हमारे समाज में एक भेदभाव उत्पन्न कर देगी। कुछ लोग बिल्कुल मॉडर्न हो जाएंगे, जिनके पास सपोर्ट होगा, जिनके पास पैसा होगा, जो स्कूल में जा सकते थे, तो वो बहुत मॉडर्न हो जाएंगे, और कुछ हमारे जो समाज के लोग हैं, भारतवर्ष के लोग, वो क्या बहुत पिछड़े हो जाएंगे। ऐसा थिंकिंग थी उस समय के स्कॉलर्स की, थिंकर्स की, क्रिटिकल्स की। Other as that the alternative system we created so that the people were educated into the culture that was truly national। कुछ चाहते थे कि ये जो कुछ भी शिक्षा हो, जो भी ज्ञान हो, वो एक अल्टरनेटिव, मतलब आपको ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, आप उस चीज़ को सीख लीजिए, आपको वो चीज़ नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को सीख लीजिए। मतलब ऑप्शन हो, स्कूलों में भी ऑप्शन हो कि हमको ये नहीं आता है तो हम इन चीज़ों को सीख लें, वो नहीं आता है तो हम उसमें इंटरेस्टेड है। इट मीन्स द डिज़ायर, द इंटरेस्ट। बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो, बच्चों को जिसमें डिज़ायर हो, बच्चों की जिसमें उनका माइंड और सोल दोनों इन्वॉल्व हो, ऐसे एजुकेशन बच्चों को दिए जाएं। हु वॉज द डिफाइन वाट वॉज ट्रूली नेशनल। कौन बता सकता था कि सच में राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षा सही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे उस समय। जब हमारा नेशनल मूवमेंट हो रहा था 1920 असहयोग आंदोलन, उस समय ये सारी एक्टिविटी हो रही थी, तो कन्फ्यूज़न एक तरफ समाज में ही हमारे दो ग्रुप बढ़ चुका था। हमारे अपने इंडियन स्कॉलर्स में कुछ स्कॉलर्स चाहते थे कि हमारा जो एजुकेशन हो वो बिल्कुल क्या हो, मॉडर्न हो, साइंटिफिक तरीके से हो, बट कुछ स्कॉलर्स ये चाहते थे कि हमारी जो शिक्षा हो वो पूर्णतः हमारे बेसिक एजुकेशन पे हो, हमारे इंडियन एजुकेशन पे हो, जो हमारे कल्चरल, हमारे रिलीजन, हमारे रेस, हमारे कास्ट, हमारे जेंडर को सपोर्ट करते हों।
ऐसा हमारे इपिक हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं, इन सब को सपोर्ट करने वाले एजुकेशन हो। ऐसा डिवाइडेशन था, थिंकिंग में डिवाइडेशन थी उस समय। द डिबेट अबाउट व्हाट्स इज नेशनल एजुकेशन, और ये जो तर्क था कि आखिर में राष्ट्रीय शिक्षा क्या बने, ought to be continued till the after independence। और यही नहीं, सिर्फ 1920 ही तक नहीं, बल्कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा कैसी हो, ये एक डिबेट का एक डिबेट का टॉपिक अगर हम बात करें तो एक तर्क करने का एक टॉपिक बन करके रह गया, ठीक है, कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन हो वो कैसी हो। Now this is the figure related to the figure 12. The children playing in a missionaries school in the कोम्बेटूर कोलकाता का जगह का नाम है, जहाँ पे मिशनरीज है। जैसे मिशनरीज होती थी ईसाई धर्म की, जो अपने धर्म, मिशनरीज मतलब जो एक सिंगल पार्टिकुलर रिलीजन का प्रसार करे, ठीक है। तो उसी मिशनरीज का ये एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। और ये द 20th सेंचुरी का ये है। बाय द मिड 19th सेंचुरी, अगर हम 19वीं शताब्दी के मध्य समय की बात करें, स्कूल फॉर द गर्ल्स वर बीइंग सेट अप बाय द क्रिश्चियंस मिशनरीज एंड द इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में लड़कियों के लिए जो शिक्षा स्टार्ट की गई थी वो मिशनरीज के द्वारा, और कुछ जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक जो लोग थे, उनके द्वारा लड़कियों के लिए खास करके शिक्षा लाई गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय में जो लड़कियां होती थी उनको स्कूलिंग का राइट नहीं था, वो घर से बाहर नहीं जाती थी, बाहर स्कूलों में जा कर के अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तो कुछ मिशनरीज ने इनको सपोर्ट किया। इल्सवेयर देखते हैं, इट मीन्स दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इट मीन्स दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। इट्स वेयर, यानी जिस समय 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतवर्ष में ये सारी एक्टिविटी हो रही थी, तो पूरे वर्ल्ड में और भी कहीं कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था, चलिए उसको देखते हैं। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन, शिक्षा क्या है? लोगों को सभ्य बनाने का एक मिशन है। यानी इट मीन्स शिक्षा जो होती है ना, जो एजुकेशन होता है, 1 मिनट Hello everyone, I am stress free just because of teachment. Earlier I invest. जो एजुकेशन होता है वो एजुकेशन लोगों को सिविलाइज करने का एक वे होता है। Until the introduction of the Education Act 1817, अगर हम लोग शिक्षा नीति 1870 की बात करें, there was no widespread education for the population as a whole for much of the 19th century। यानी उस समय जो 1870 में शिक्षा नीति बनाई गई थी, वो शिक्षा नीति जो 19वीं शताब्दी में जो एजुकेशन चल रहा था उससे बिल्कुल अलग थी। चाइल्ड लेबर बीइंग वाइडली प्रिविलेटेड, यानी इस समय जो बच्चों का श्रम था, यानी कि अगर हम बच्चों से कोई कार्य कराते हैं, चाइल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल प्रिवेलेटेड है, मतलब मना था। पुअर चिल्ड्रन कुड नॉट बी सेंट टू द स्कूल, गरीब बच्चे स्कूल में नहीं जाया करते थे। फॉर देयर अर्निंग वाज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो उनके फैमिली की अर्निंग इतनी थी कि वो अपना पेट पालने से ही कम पड़ जाता था, तो बच्चे स्कूल कैसे जा सकते थे। द नंबर ऑफ द स्कूल्स वाज आल्सो लिमिटेड, उस समय जो स्कूल्स के नंबर थे, यानी संख्या जो थी स्कूलों की, वो भी बहुत गिनी चुनी थी, लिमिटेड थी। टू दोज रन बाय द चर्च और सेटअप बाय द वेल्दी इंडिविजुअल्स, और वो स्कूल्स किसके द्वारा, या तो चर्च के द्वारा, या तो कोई बहुत इंडिविजुअल रूप से, सिंगल खुद के लिए, इंडिविजुअल मतलब पर्सनली रूप से अगर कोई चाहता था बच्चों को शिक्षा देना या फिर स्कूल को ओपनिंग कराना, तो ऐसे लोग कराया करते थे। It was only after the coming into the force of the Education Act that schools were opened by the government and the compulsory schooling was introduced। और ये सारी चीज़ें कब सुधरी? जिस समय सरकार के द्वारा स्कूलिंग को नेसेसरी कर दिया गया और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे और भी स्कूल्स जब ओपन किए जाने लगे, तो जो गरीब परिवार के बच्चे थे वो भी स्कूलिंग में कर सकते थे।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर ऑफ द पीरियड दैट द थॉमस एंड रॉल्ड। अगर हम इस समय इट मीन्स द 1817 यानी इट मीन्स 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस 19th सेंचुरी में एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, एजुकेशनल थिंकर हैं, जिनका नाम है थॉमस अर्नोल्ड, हु बिकम द हेड मास्टर ऑफ द प्राइवेट स्कूल, जो कि एक प्राइवेट स्कूल के हेड मास्टर थे। रगबो स्कूल का नाम है रगबाई, फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल क्यूरिकुलम विच हैड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड द रोमन क्लासिक्स। यानी एक ऐसे स्कूलिंग, एक ऐसे क्यूरिकुलम को फेवर कर रहे थे जिस क्यूरिकुलम में ग्रीक और रोमन वहाँ के वर्ष का, इट मीन्स रचनाओं का, उनके पुस्तक ज़्यादातर निहित थे, तो ऐसे पुस्तकों को ये क्या करते थे, ज़्यादा फेवर करते थे। रिटिन 2000 ईयर्स अर्लियर ही सैड, यानी 1870 यानी 19th सेंचुरी से 2000 वर्ष पहले लिखी गई पुस्तकों को ये ज़्यादातर हायर एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में लाने को फेवर ये करते थे। It has always seemed to me one of the great advantages of the courses of study generally the pursued in the English schools that is drawn of the mind of the continuously to drain upon the past। ये इन पुस्तकों के जरिए, इन ज्ञान के जरिए ये बताना चाहते थे लोगों को, एजुकेशन के जरिए, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन आपके मन मस्तिष्क, आपके आत्मा को क्या करेगी, रिफॉर्म करेगी। इट मीन्स यू विल बी सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी, द एजुकेशन ऑफ द इंडिया दैट वाज द अनसिविलाइज्ड। उनको ये लगता था कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल क्या है, असभ्य है, कोई मैनर नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई तौर तरीके नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा वो समझते थे। इट मीन्स दे वांटेड टू civilized to the Indian people by the education which have come from the western area, यूरोपीय, जो यूरोप से, जो वेस्टर्न एरिया से एजुकेशन आया हुआ था, उस एजुकेशन के जरिए वो भारत वर्ष के लोगों को सिविलाइज्ड करना चाहते थे, ऐसा इनकी थिंकिंग थी। अर्नोल्ड फेल्ट दैट स्टडी ऑफ द क्लासिक डिसिप्लिन द माइंड। अर्नोल्ड को ये लगता था कि अगर हम एक क्लासिक यानी कि रॉयल फैमिली से, रॉयल परिवार से, रॉयल सभ्यताओं से जुड़े हुए पुस्तकों को स्कूलों में लाएंगे भारत के, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, इट मीन्स अनुशासित होंगे। In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and they needed to be the control। जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो यूरोपियन या फिर जो अंग्रेज़, जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, यूरोपियन जो राइटर्स हैं, ये यही चाहते थे कि भारत में ऐसी शिक्षा आए जो यहाँ के यंग हों, जो यहाँ के यंग पर्सनस, इट मीन्स ओल्डेस्ट पर्सन, इन सभी लोगों को डिसिप्लिन में लाए, उनके अंदर एक चीज़ों को समझने की, सभ्यता की, सोसाइटी में रहने की, सही गलत को समझने की, प्रॉपर और इनप्रॉपर बिहेवियर की, ये सब चीज़ों को सुधारा जाए, ऐसी शिक्षा भारत में लाई जाए। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड, ऐसा एजुकेशन भारत में आए जो भारतीय लोगों के मन मस्तिष्क को अनुशासित कर दे, वाज मीन टू गाइड देम टू इन द पैथ, और उनको ये सही रास्ता यानी जीवन जीने का एक सही रास्ता भारतीयों को सिखाए, ऐसा एजुकेशन भारत में आए, ऐसा ये लोग चाहते थे। Can you suggest how such ideas might have influenced the thinking about the education of the poor in England and the natives in the colonial? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो इनकी आइडियाज़ थी, इन आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस, प्रभाव हमारे भारत के थिंकर्स पे कैसा पड़ा, एंड द पुअर इन इंग्लैंड एंड द नेटिव्स इन द कॉलोनियल, यानी जो भारत में भी तो इंग्लैंड में भी तो जो गरीब लोग होते होंगे, तो इंग्लैंड में जब इंग्लैंड की सोच हमारे भारतवर्ष के लिए ऐसी है, तो जो इंग्लैंड में गरीब लोग होते होंगे तो उनके लिए इनकी थिंकिंग कैसी होती होगी। और इनके साथ साथ जिस समय ये औपनिवेशवाद भारत में लाए थे, तो उस औपनिवेशवाद के समय हमारे भारत के जो लोग हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या आप लोग इनको थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर था नेटिव एजुकेशन, जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आप लोग को कल वाले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, ओके। और इसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है, वर्किंग टुवर्ड्स चेंजेस, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम लोग
जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कास्ट एंड रिफॉर्म, इसको भी पढ़ लेंगे बट वर्ड विजुअल आर्ट, इसको पढ़ लेंगे बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, द मूवमेंट मेकिंग द नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1947। 1870 से लेकर के 1947 तक के जितने भी मूवमेंट्स हैं, एक नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब पढ़ेंगे और इसी बुक में हम लोग भारत को आज़ाद भी करा देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बच्चों।